Hello dear students, this is Muhammad Rashid, your math teacher from Hera Public School, Fadgudiya Ambari Azamgarh. Dear students, in previous video we have solved exercise 1.1. In today's video we are going to learn about standard form and expanded form, comparison of the number, predecessor and successor, and ordering of the number. So let's begin. First we will learn about what is expanded form. What is expanded form? Writing a number as the sum of the place values of its digits is called the expanded form of that number. Let's take an example. Suppose that this is a number 5612. Okay, 5612. Write in expanded form. So you have to write this number in expanded form. So this is ones place, this is tens place, this is 100 place, and this is 1000 place. So the place value of 5 is 5000. 5000 plus 6 is in the hundreds place, so the place value of 6 is 600. 1 is in the tens place, so the place value of 1 is 10. And 2 is in the ones place, so the place value of 2 is 2. So this form is called expanded form. Clear? Take another example. Example 2, 7309. Okay, 7309. This is ones place, this is tens place, this is 100 place, and this is 1000 place. So 7 is in the 1000 place, so the place value of 7 is 7000, plus 3 is in the 100 place, 3 is in the hundreds place, so the place value of 3 is 300. And 0 is in the tens place, 0 is in the tens place, and 10 zeros are 0, 10 zeros are 0, so we get 0 here. And 9 is in the ones place, and the place value of 9 is 9. Okay, so this form is called expanded form. In this way you will find expanded form of any number. So students, now we will know about how to write a short form of an expanded number. Means किसी भी expanded number का हम short form कैसे लिखते हैं. To write the short form of any expanded number, write the face value of each digit in its correct place. तो इसमें करते क्या है कि हमें एक expanded number given होता है. अब उस expanded number से हर नंबर की जो फेस वैल्यू होती है उसको करेक्ट प्लेस पे हम रखते हैं. यानी कि कौन सी फेस वैल्यू वंस प्लेस पे होगी, कौन सी फेस वैल्यू टेंस प्लेस पे होगी, कौन सी फेस वैल्यू 1000 प्लेस पे होगी, और कौन सी प्लेस वैल्यू 10,000 प्लेस पे होगी. इन दिस वे वी विल राइट शॉर्ट फॉर्म ऑफ द नंबर. लेट्स टेक एन एग्जांपल. So this is an expanded number. This is an expanded number, and you have to write this expanded number in standard form or short form. Ones, tens, 100, and 1000. So this is 5000. So we will write 5 in the 1000 place, and this is 600. So we write 6 in the 100 place, and this is 30, so we write 3 in the 10th place, and in the 1st place this is 5, so we write 5.
So this is 5635. This form is called short form और स्टैंडर्ड फॉर्म। शॉर्ट फॉर्म और स्टैंडर्ड फॉर्म दोनों एक ही होता है बेटा, है ना, उसमें कंफ्यूज मत होइएगा। अगर शॉर्ट फॉर्म कहा जाए या स्टैंडर्ड फॉर्म तो दोनों क्या होता है, एक होता है। जैसे हमारा नंबर जो होता है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में होता है, जितने भी काउंटिंग नंबर्स होते हैं हमारे, जैसे 1233, 9999, ये सब क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म में होते हैं, ठीक है। तो इन्हीं को शॉर्ट फॉर्म भी कहते हैं, इन्हीं को स्टैंडर्ड फॉर्म भी कहते हैं ना, तो इसमें कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। क्लियर? नाउ वी विल लर्न हाउ टू कंपेयर नंबर्स। नंबर्स को कैसे कंपेयर करेंगे? नंबर को दो मेथड से कंपेयर किया जाता है। देयर आर टू मेथड ऑफ कंपेयरिंग नंबर। द फर्स्ट वन इज, नंबर ऑफ डिजिट्स क्या है, डिफरेंट है। जैसे एक नंबर में 4 डिजिट है, दूसरे नंबर में 5 डिजिट है। इसको ऐसे समझते हैं, कंपेयर 5322 एंड 66,255। इन दोनों नंबर्स को हमें क्या करना है, कंपेयर करना है। कंपेयर का मतलब कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है, ठीक है। तो बड़े छोटे के लिए हम कौन सा सिंबल यूज़ करते हैं, ये सिंबल, है ना, ये सिंबल और ये सिंबल, है ना, लेस देन और मोर देन। सो इन फर्स्ट मेथड वी विल काउंट digits of the number. If I talk about 5322 and 66,255, so in 5322 there are 1 2 3 4 digits. How many digits? 4 digits. And in 66,255 1 2 3 4 5 digits. And if I ask in which number the number of digits is more, you will say in 66,255 there are 5 digits, and in 5322 there are only 4 digits. So the number having more digit is the greater than that number. So 5322 is less than 66,255। ठीक, तो हमारा जो 66,255 था ये क्या है, ज़्यादा है। किससे? 5322 से। कैसे हमने पता लगाया इसको? हमने पता लगाया इनके डिजिट्स को काउंट करके। इसमें 1 2 3 4 है, इसमें 1 2 3 4 5। तो जिस नंबर में ज़्यादा डिजिट्स होंगे वो नंबर ऑब्वियसली क्या होगा, बड़ा ही होगा। क्लियर? एंड द सेकेंड इज, इफ द नंबर ऑफ डिजिट आर सेम इन द नंबर्स। अगर दो नंबर्स हैं, ठीक है, ये दो नंबर्स हैं 5321 एंड 5320। अब इसमें नंबर्स आप डिजिट्स काउंट करते हैं तो दोनों में सेम है, 1 2 3 4 1 2 3 4। अब इसको कैसे कंपेयर करेंगे? इसको कंपेयर करने का मेथड बेटा कि सबसे पहले हम लार्जेस्ट प्लेस से कंपेयर करना शुरू करते हैं। कौन से प्लेस पे? लार्जेस्ट प्लेस से हम कंपेयर करना शुरू करते हैं। तो दिस इज 1st प्लेस, दिस इज 10th प्लेस, दिस इज 100th प्लेस, दिस इज 1000th प्लेस, एंड इन दिस नंबर आल्सो दिस इज 1st प्लेस, दिस इज 10th प्लेस, दिस इज 100th प्लेस एंड दिस इज 1000th प्लेस। तो सबसे पहले 1000 प्लेस पे हम कंपेयर करना शुरू करते हैं। कंपेयर करना जब शुरू करते हैं तो यहाँ पे क्या 1000 प्लेस पे 5 है, यहाँ पे भी 5 है, ठीक, 1000 प्लेस पे 5 है, यहाँ पे भी 5 है, तो दोनों अभी क्या है, इक्वल है। दोनों क्या है, इक्वल है। अब चलते हैं 100th प्लेस पे। 100th प्लेस पे बेटा यहाँ पे 3 है, यहाँ पे भी 3। अभी हमें कोई छोटा या बड़ा मिला ही नहीं क्योंकि दोनों डिजिट्स क्या हो गए, सेम हो गए। अब चलते हैं 10th प्लेस पे। इन 10th प्लेस हियर इज 2 एंड हियर इज आल्सो 2। अब भी दोनों नंबर क्या है, बराबर ही मिल रहे हैं, दोनों नंबर इक्वल ही मिल रहे हैं। अभी हमें बड़ा छोटा का कोई कॉन्सेप्ट आया ही नहीं समझ में कि अब कैसे बड़ा छोटा करें, क्योंकि ये तीनों नंबर्स क्या हैं, आपस में क्या है, इक्वल हैं। अभी दोनों इक्वल ही हैं। अब चलते 1st प्लेस पे। 1st प्लेस में यहाँ पे क्या है, 1 है, यहाँ पे क्या है, 0। मिल गया हमें डिफरेंस, है ना, डिफरेंस दिखा ना, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे क्या है, 0 है। अब 1 बड़ा होता है कि 0 बड़ा होता है? 1 इज ग्रेटर और 0 इज ग्रेटर? You will say 1 is greater. So 1 is greater than 0.
So 5321 is greater than 5320. Clear? In this way we will compare numbers. So now we will know about what is predecessor and what is successor. A number one less than a given number comes just before it is called its predecessor. मीन्स अगर कोई नंबर हम दे दें 52, अब 52 से एक कम, 52 से एक कम, 52 से एक कम करेंगे कितना आएगा बेटा 51। तो किसी भी नंबर में से अगर हम एक कम कर देते हैं यानी 1 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, 1 लेस कर देते हैं, तो क्या आ जाता है हमारा प्रेडिसेसर। या किसी नंबर से पहले आने वाला जो नंबर होता है, इससे पहले आने वाला नंबर जो होता है ना, वो हमारा क्या होता है प्रेडिसेसर होता है। ठीक, जैसे 52 का 51, 51 का 50, ये क्या है प्रेडिसेसर है। ठीक है, तो ये हमारा होता है प्रेडिसेसर। व्हाट इज सक्सेसर? अ नंबर वन मोर देन गिवन नंबर इज कॉल्ड इट्स सक्सेसर। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल 99, इसका सक्सेसर क्या होगा? इसका सक्सेसर क्या होगा? व्हाट इज द सक्सेसर ऑफ 99? तो अ नंबर वन मोर देन द गिवन नंबर, इस नंबर से एक ज़्यादा कौन सा नंबर होगा वही इसका क्या हो जाएगा सक्सेसर हो जाएगा। जैसे 99 है, 99 से एक ज़्यादा क्या है 100, या 99 के बाद आने वाला जो नंबर होता है वो क्या होता है 100 होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं सक्सेसर। तो सक्सेस का मतलब जो नंबर के बाद में आए तुरंत, और प्रेडिसेसर का मतलब होता है जो पहले आए। ठीक है, तो इससे हम याद करते हैं पी से होता है पहले, पी से क्या होता है पहले। तो जहाँ पे प्रेडिसेसर होगा वहाँ पे क्या जो पहले नंबर आएगा वो उसका क्या होगा प्रेडिसेसर होगा। एंड सक्सेसर का मतलब, सक्सेस का मतलब बाद में, सक्सेस का मतलब आगे। ठीक है, जैसे कोई आदमी सक्सेस हो जाता है तो आगे बढ़ता है ना, वही आगे बढ़ता है जो सक्सेस होता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप याद करेंगे कि सक्सेस का मतलब होता है आगे बढ़ना और प्रेडिसेसर का मतलब होता है पीछे जाना। पी से पीछे एंड पी से प्रेडिसेसर। सक्सेस का मतलब आगे जाना, ठीक है, या आगे बढ़ना, तो सक्सेस का मतलब जो नंबर उसके आगे होगा तुरंत वही क्या होगा उसका सक्सेसर होगा। ठीक है, तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रेडिसेसर एंड सक्सेसर। नाउ वी कम टू द एक्सरसाइज 1.2। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज राइट इन एक्सपेंडेड फॉर्म। तो एक्सपेंडेड फॉर्म हमने बताया क्या होता है। एक्सपेंडेड फॉर्म अगर नंबर्स में जो डिजिट्स हैं उन डिजिट्स की प्लेस वैल्यूज़ को सम के फॉर्म में लिख देंगे तो वो क्या हो जाता है एक्सपेंडेड फॉर्म। हम क्वेश्चन नंबर एच को एक्सप्लेन कर रहे हैं, बाकी आप लोग क्या करिएगा बेटा सॉल्व कर लीजिए ये सारे क्वेश्चंस को ना, इसको हम एक्सप्लेन कर रहे हैं कैसे करना है। सो क्वेश्चन इज 584096। This is ones place, this is tens place, this is 100 place, this is 1000 place, this is 10,000 place, and this is lakh place. So 5 is in the lakh place, so 5 lakh plus 8 is in the 10,000 place, so 80,000 plus 4 is in the 1000 place, so 4,000 plus 0 is in the 100 place, so 0 ही होगा यहाँ पे है ना, प्लस 9 इज इन द टेंस प्लेस, सो 9 टेंस 90, 9 टेंस 90, एंड 6 इज इन द वन प्लेस, 6 इज इन द वन प्लेस, सो 6। दिस इज द एक्सपेंडेड फॉर्म फॉर 5,84,096। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, राइट इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। अब ये एक्सपेंडेड फॉर्म है, इसको हमें किस फॉर्म में लिखना है, स्टैंडर्ड फॉर्म या शॉर्ट फॉर्म में। ठीक है, तो ये लेते हैं क्वेश्चन सी। क्वेश्चन सी इज 5 लाख वंस टेंस 100, 1000, 10,000 lakh। 5 lakh, so 5 is in the lakh place, so we will write 5। 3,000, here we get 3,000, there are no 10,000, so in 10,000 place we will write 0, and in the 1,000 place this is 3,000, so we will write 3 in the 1,000 place,
and 900s, and 4 ones after 100 in question talking about ones, not about tens. So here is not any tens, so we have to write 0 in the tens place, and now in ones place 4 ones. So 5 0 3 9 0 4 ones, tens, 100. This 5,03,904 is the short form of the number. Clear? Question number 3, put the correct sign less than or more than or equal. Okay, we will take question number F. First we have to count the number of digits. 1 2 3 4 5 6. 1 2 3 4 5 6 digits are same, so now we have to compare the place values of the numbers. So in lakh place, here is 3, here is 3, both are same. Now in 10,000 place, here is 9, here is 9, both are same. And in the 1,000 place, here we get 2 and here we get 3. So here 2 is less than 3, so this number will be greater number. Okay, and in question number A, 5,681. So number of digit 1 2 3 4 1 2 3 4, number of digits are same in this question, so we have to compare the place values of the number. So this is 5 and this is 5, both are same. Now we move to 100 place, this is 6 and this is 8, and we know that 6 is less than 8, so this number will be greater. Okay, and question number 4, arrange in ascending order. ascending order का मतलब होता है कि सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर सबसे बड़ा. सबसे छोटा कौन सा इसमें, सबसे छोटा कौन सा है? ठीक है, तो सबसे छोटा कौन सा नंबर है? विच इज़ द स्मॉलेस्ट नंबर इन दिस सीरीज? we get 2000. So 2697. after that 3824. after that 3971. after that 4183, and 4281 is the largest number. Okay, so this order is called ascending order. डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है सबसे पहले हम बड़े नंबर्स को लिखेंगे, उसके बाद उससे छोटे, उसके बाद उससे छोटे, उसके बाद उससे छोटे, उसके बाद उससे लास्ट में सबसे छोटे नंबर को लिख देंगे. ये ऑर्डर हमारा होता है डिसेंडिंग ऑर्डर. क्लियर? Question number 6 is write the predecessor and the successor of the following numbers. So we have already discussed about predecessor and successor. Predecessor of 8679. predecessor क्या होगा? 8678. and successor क्या होगा? successor one more than that number. So 8679. one more than 79 is 80. So this is predecessor and this is successor of this number. Question number 7, fill in the blanks. The number that is between 8909 and 9001. ठीक, 8909 और 8909 and 9001. 9001 और 899 के बीच में कौन सा नंबर है? That is 9000. The predecessor of 6,89,490 is. तो इससे एक कम कर देंगे प्रेडिसेसर, इससे एक पहले कौन सा नंबर आएगा? 6,89,439 is the predecessor of this number.
and the successor of 82,769 is 82,769. 69 प्लस 1 क्या होता है? 70 होता है. Writing a number as the sum of the place value of its digit is called expanded form of that number. Complete the series. इस सीरीज को आपको क्या करना है? कंप्लीट करना. 35, 36, 37 है ना, यहाँ पे 38, 39. ऐसे यहाँ पे क्या है बेटा? 44, 46, 48. कितने का डिफरेंस है? 2 2 का है. यहाँ पे कितने का है? 150, 160, 170. 10 10 का डिफरेंस है ना. तो यहाँ पे हो जाएगा 372 180. ऐसे यहाँ पे 190. क्लियर. एंड क्वेश्चन नंबर ई 41. अब देखो ये डिजिट्स क्या हैं? 42 से यहाँ तक दोनों में क्या है? सेम है. यहाँ पे दोनों क्या है? सेम है. यहाँ पे क्या है? 4 लाख है, 5 लाख है, 6 लाख है. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा. और ये सेम ही रखना है ना. ऐसे ही यहाँ पे हो जाएगा 8, 42, 141 है ना. इस तरीके से करना है. क्लियर. सो दिस वाज द सॉल्यूशन ऑफ एक्सरसाइज 1.2. ओके. Now you will complete this exercise in your notebook and you have to submit within 2 days after the submission of the video. Thank you.